Hello students, welcome. I hope you are all fine and safe at home. So earlier we started lecture series in subject Operation Research, in which we discussed the history and definitions of Operation Research. In today's lecture I will discuss about the characteristics, features of Operation Research. What are its scope, what are the phases, what are the applications of Operation Research, and what are the limitations. So let us start. First thing is characteristics, features of Operation Research. ऑपरेशन रिसर्च के वेरियस फीचर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो फीचर है वो है यूज़ ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी टीम. इसमें क्या है? OR involves many number of variables and constraints. यहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च के अंदर जो वेरिएबल्स और कंस्ट्रेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है, जो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल में. फॉर अ सिंगल पर्सन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज जस्टिफाइबली. किसी एक के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारे प्रॉब्लम्स और को खुद सॉल्व करें. इसीलिए hence people from various disciplines are required to understand the OR problem, which who applies their special knowledge acquired through experience to get better view of cause and effect of the event in the problem and to get better solution of the problem. यानी कि जो भी डिफरेंट डिसिप्लिन के एक्सपर्ट्स हैं उनको गैदर करके जो भी OR का प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे थ्रू देयर स्पेशल नॉलेज. दिस टाइप ऑफ टीम अप्रोच विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजन. इसका बेनिफिट यही होगा कि जो रॉन्ग डिसीजन अगर पॉसिबल है तो वो नहीं आएगा. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इज कंप्लीट सिस्टम ओरिएंटेशन. A business may be considered as system having various subsystems. The decision made by any subsystem has its effect on the other subsystem. कोई भी सबसिस्टम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर सबसिस्टम का जो भी डिसीजन है वो अपर लेवल पे या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का होल डिसीजन है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा. बिजनेस का जो भी डिसीजन है उस पर इफ़ेक्ट करेगा. When dealing with OR problem, one has to consider the entire system and characteristics of subsystem, interrelation between subsystem, and then analyze the problem, search for suitable model and get solution for the problem. That's why जब OR प्रॉब्लम के साथ हम डील कर रहे हैं तो पूरी एंटायर सिस्टम को हमको कंसिडर करना पड़ता है और जो भी सब सिस्टम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर उनका इंटर रिलेशन क्या है बिटवीन सब सिस्टम, फिर हमको प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ता है उसके बाद. सो कंप्लीट सिस्टम ओरिएंटेशन इज required. Hence it can be conducted that the OR is a system approach rather than individual approach. We have to include all the subsystems to get our final result. Next characteristic feature is involvement of scientific method. As you know that the operation research is a scientific approach, so involvement of scientific method is very necessary. Various scientific methods are involved in OR to solve different kinds of problems. Scientific methods are based on derived logics and empirical relation from the past experiences. जो भी साइंटिफिक मेथड्स है वो कैसे डिराइव की गई होगी? डिराइव्ड फ्रॉम द लॉजिक एंड एम्पेरिकल रिलेशन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस. जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है उनके ऊपर से जो भी एम्पेरिकल रिलेशन, जो भी इक्वेशंस डिराइव किए हैं या फिर लॉजिक डिराइव किया है कि ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो इसका रिजल्ट ये होगा, दैट टाइप ऑफ सिचुएशन. नेक्स्ट, सो एप्लीकेशन ऑफ scientific method leads to logical and sequential result which are not depending on irrelevant assumption. इससे बेनिफिट ये होगा कि हम
इररिलेवेंट यानी कि यूजलेस अजम्पशन से बच जाएंगे। एप्लीकेशन साइंटिफिक मेथड में लॉजिकल और सीक्वेंशियल रिजल्ट मिलेगा, हमको कुछ अज्यूम नहीं करना पड़ेगा कि अगर ऐसा सिचुएशन है तभी ऐसा रिजल्ट मिलेगा, जबकि हमने पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर से लॉजिक या फिर एम्पिरिकल रिलेशन बनाया है। फोर्थ टॉपिक इज इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ डिसीजन। अभी इससे बेनिफिट क्या होगा, OR प्रोवाइड वेरियस अल्टरनेटिव्स and let the user to select an optimal choice. This will definitely help in making better and quick decision. Hence quality of decision taken is improved. अभी जो ऑपरेशन रिसर्च है दैट इज़ नॉट सिंगल सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ऑपरेशन रिसर्च है जो भी पॉसिबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है वो सब प्रोवाइड करता है और उसमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूज़र के अप्रोप्रिएट कौन सा है। जैसे कि मेरी नीड्स अलग है, आपकी नीड्स अलग है, तो बेस्ड ऑन यूज़र चॉइस वो OR प्रोवाइड करता है। उससे क्या होगा कि जो भी बेटर एंड क्विक डिसीजन हम ले सकते हैं। 5. अनकवरिंग हिडन प्रॉब्लम्स। Sometimes during solving adopted problem, new problems are uncovered. These problems are mostly overlooked, such as, for example, excess inventory provides flexibility in managing orders, but on the other hand, it hides many problems related to manufacturing, human and finance. ज़्यादा अमाउंट में इन्वेंटरी अवेलेबल है, इसका मतलब हमको पता है कि जो भी एज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है कि जब रिक्वायरमेंट होगी तो हर्डल नहीं होगी, या फिर जो प्रोसेस लाइन है वो स्टॉप नहीं होगी ड्यू टू इन्वेंटरी बस। लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी के वजह से जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम यहाँ पर जो बढ़ जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ह्यूमन, फाइनेंस, उसके एक्सेस इन्वेंटरी को स्टोर कहाँ करना, उसके हैंडलिंग कैसे करनी, ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, वो ओवरलुक किए जाते हैं समटाइम्स। सो OR की मदद से वो अनकवर हो सकते हैं। As uncovered problem can also affect the existing problem, it is very essential to solve this problem using different OR techniques. ये भी वो uncovered problem है, वो हमारे existing problem को affect करेंगे, so it is very essential to solve this problem using different OR techniques. So these are the characteristics. Now let us discuss phases of operation research. There are 3 phases mainly. The first one is pre-modeling phase. First one is identification and quantification of problem. जो भी हमारा प्रॉब्लम है सबसे पहले हमको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और क्वांटिफाई करना पड़ेगा. इट इज़ एसेंशियल टू हैव क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. It is obviously clear that wrongly defined problem cannot give right solution. गलत अगर प्रॉब्लम की डेफिनेशन ही गलत है तो हमको सॉल्यूशन राइट कभी भी नहीं मिलेगा. सो फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम द प्रॉब्लम मस्ट बी वेल डिफाइंड. उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम है हमको उसको वेल डिफाइन करना पड़ेगा. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ problem is required to be formulated in standard format as per scientific method to be applied. अभी हमने अगर एक साइंटिफिक मेथड बनाई है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे, कुछ इक्वेशन होंगे, सो उस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स फॉर्म में है तो उस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोई इक्वेशन है तो इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे. Formulation involves factors affecting problem along with quantitative measures of variable, formation of constraints which are affecting the problem, and defining the objective function of problem. Here there are three things involves which affect the problem along with the quantitative measure is the
क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ वेरिएबल। देन सेकंड थिंग इज फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, मतलब लिमिटेशंस हमारी कितनी है, कि मतलब हमारे पास इतने रिसोर्सेस है, इतने मैन आवर्स है, इतने मशीन आवर्स है। सो उसके ऊपर से हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सो ये फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम के अंदर ही आएगा, विच आर अफेक्टिंग द प्रॉब्लम। एंड ऐसा नहीं है कि जो भी कंस्ट्रेंट है, मतलब एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट है, उसको भी हम कंसिडर करें जो हमारे प्रॉब्लम को अफेक्ट नहीं करता, फिर भी हम उसको कंसिडर करें तो दैट बिकम्स इररिलेवेंट। हमको सिर्फ वही कंस्ट्रेंट को ध्यान में लेना है जो हमारे प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो, जिससे हमारे रिजल्ट पे कुछ डिफरेंस आने वाला हो। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है वो हमको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा गोल है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या फिर मिनिमाइजेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल, दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। सो कम किसी भी स्पेसिफिक एक या फिर मैक्सिमाइज्ड क्वालिटी, हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्लियरली डिफाइन करना होगा। सेकंड फेज इज मॉडलिंग फेज। इन मॉडलिंग फेज द फर्स्ट थिंग इज फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। OR involves various mathematical models for finding out optimum solution। OR के अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स अवेलेबल है जो हमको ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। डिसीजन वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाइड इन प्री मॉडलिंग फेज हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल टू बी यूज्ड। डिसीजन वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रेंट्स को हमको आइडेंटिफाई करना है इन प्री मॉडलिंग फेज, जो हमने यहाँ पर कि हमारा डिसीजन वेरिएबल कौन कौन से हैं, कंस्ट्रेंट्स यानी कि हमारी जो लिमिटेशंस है वो क्या है, उनको हमने प्री मॉडलिंग फेज में आइडेंटिफाई कर दिया है। फिर उनको कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल टू बी यूज्ड, दैट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। In modeling phase and in formulation of problem, the mathematical model involves set of equations for effectiveness measurement of objective function and constraint। तो उसके अंदर बेसिकली सिर्फ इक्वेशंस होंगे। इफेक्टिव मेजरमेंट रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ चेंज्ड पैरामीटर ऑन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट रिप्रेजेंट द लिमिटेड रिसोर्सेज। जो मैंने बताया वही सेम चीज़, जो भी कंस्ट्रेंट्स होगी वो क्या डिफाइन करेंगी, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस है वो, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यानी कि हमको क्या मिनिमाइज़ करना है या फिर क्या मैक्सिमाइज़ करना है। तो कंस्ट्रेंट में भी कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड, अभी कंस्ट्रेंट हमारे कंट्रोल में हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल ले तो जो भी गवर्नमेंट की टैक्सेस है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, या फिर जो भी नॉर्म्स आते हैं, ठीक है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, या फिर और ऑन अलोंग दी अदर साइड रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है तो वो हमारे कंट्रोल में है। थर्ड फेज इन मॉडलिंग इज डेटा कलेक्शन। एज वी नो दैट डेटा इज वेरी एसेंशियल टू जनरेट सॉल्यूशन फ्रॉम द डेवलप्ड मॉडल। कोई भी हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें अगर सॉल्यूशन जनरेट करना है तो डेटा बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। डेटा की वैल्यू आप जानते हो। डेटा में बी बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री, एक्सपीरियंस और फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेटा बैंक। डेटा कहीं से भी हो सकता है, हिस्ट्री में से हो सकता है, हमारा खुद का एक्सपीरियंस क्या है उसके बेस्ड, या फिर दूसरा कोई एक्सपीरियंस हो उसके बेस्ड, फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेटा बैंक, जो भी स्टैंडर्ड डेटा बैंक है उसमें से कलेक्ट कर सकते हैं। मच डेटा यूजुअली आर नीडेड बोथ टू गेन an accurate understanding of problem and to provide the needed input for mathematical model। जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना बेनिफिशियल होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई भी डेटा रिलेटेड टू आवर प्रॉब्लम डेफिनेशन। फोर्थ वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेट सॉल्यूशन। अब हमको क्या करना है, आफ्टर मैथमेटिकल मॉडल इज फॉर्मुलेटेड for problem under consideration, next step is to apply different techniques to solve the developed model। अगला स्टेप हमारा क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करना है और जो भी हमने मॉडल डेवलप किया है उसको सॉल्व करना है। थ्रू अडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स
various number of possible alternative solutions are available which represent the optimization of objective function. अभी वेरियस टेक्निक्स को यूज़ करके हम पॉसिबल अल्टरनेट सॉल्यूशन ला सकते हैं और वो क्या डिफाइन करेगा, हमारा ऑप्टिमाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन. थर्ड स्टेज, फर्स्ट was pre-modeling, then modeling, and third is implementation phase, in which solution interpretation and model validation. अभी हमने सॉल्यूशन तो ला दिया लेकिन वो सही है या गलत है उसका, या फिर सॉल्यूशन का इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है. सॉल्यूशन तो आ गया, फिर उसका मीनिंग क्या है और उसका वैलिडेशन कैसे करना है, वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में आएगा. वंस सॉल्यूशन आर अवेलेबल, दे आर रिक्वायर्ड टू बी चेक्ड फॉर ऑप्टिमलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन. यानी कि वो सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या नहीं है. ठीक है, सॉल्यूशन कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन आता है, ठीक है, दो सॉल्यूशन है, दोनों में से ऑप्टिमम कौन सा है, ठीक है, वो हमको फाइंड करना पड़ेगा. द सॉल्यूशन विच गिव्स बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम is required to be selected as best solution for given problem. Simple to understand, जो भी बेस्ट सॉल्यूशन है हमारे अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन में से, वो हमको आइडेंटिफाई करना है. दिस प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एंड इम्प्रूविंग अ मॉडल टू इंक्रीज इट्स वैलिडेशन इज कॉमनली रिफर्ड एज मॉडल वैलिडेशन. इसी को हम मॉडल वैलिडेशन कहते हैं. Next is implementation, monitoring and control. After applying changes, best available solution is required to be implemented as real situation. हमने changes apply कर दिए best available solution में और उसके बाद हमको implement करना है in real situation. This will give the idea about the all hard working and analyzing procedure of solving the problem. ये हमको क्या आइडिया देगा कि जो भी हमने काम किया है उसका सॉल्यूशन क्या है. Implemented solution is required to be monitored continuously in order to check whether it gives desired result or not. हमने इम्प्लीमेंट किया, अब उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि भाई डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. If it fails to do so, there is need to change the applied solution in order to obtain desired result. अगर वो फेल हो रहा है मॉडल तो हमको उसको चेंज करना पड़ेगा और दूसरा सॉल्यूशन ट्राई करना पड़ेगा. So this was about the phases of operation research. Now decision making and operation research. What is the relation between these two? Decision making and operation research. OR is also termed as operation management. यहाँ पर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, मतलब ऑपरेशन रिसर्च है, दैट इज़ वन काइंड ऑफ मैनेजमेंट. इट मीन्स टू मैनेज द वेरियस ऑपरेशंस बाय टेकिंग ऑप्टिमम डिसीजंस एंड टू चूज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शन. इसका मतलब यही है कि जो भी वेरियस ऑपरेशंस है उनको मैनेज करना है बाय टेकिंग ऑप्टिमम डिसीजन एंड टू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस. मतलब OR में यही तो करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस फाइंड किए, अब उसमें से हमको क्या करना है, डिसीजन लेना है. सो ये यही है ऑपरेशन मेकिंग. क्या है, इट इज़ काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग जिसमें हमको ऑप्टिमम डिसीजन लेना है. सो टू मेक डिसीजन और डिसीजन मेकिंग इज इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OR. डिसीजन मेकिंग इज डिपेंडेंट ऑन 3 पैरामीटर्स. हम डेली लाइफ में भी बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है. सो इन दैट वे कोई भी प्रॉब्लम है उसमें उसके जो भी अल्टरनेट सॉल्यूशंस हैं उसमें से जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो हमको फाइंड करना है. डिसीजन मेकिंग में मेजरली 3 पैरामीटर्स है. सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज कंस्ट्रेंट्स, थर्ड इज अल्टरनेटिव्स.
अभी ये OR के फॉर्म में अगर हम समझेंगे तो थोड़ा अभी डिफ़िकल्ट होगा। अभी रियल लाइफ प्रॉब्लम के बेस्ड आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और जैसे कि एक आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, अच्छे से अच्छा स्टडी करना, ठीक है। अभी सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है, ड्यू टू कोविड-19 एज वी नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम टू कॉलेज, सो दैट्स वाई what are the, that is one constraint and alternative that we can study through online. so ये हो गया डिसीजन मेकिंग। अभी दूसरा यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचना है, इफ़ यू हैव टू रीच द एट एग्ज़ाम सेंटर विद इन टाइम यूजिंग वेरियस मोड्स ऑफ कन्वीनियंस। यू हैव 3 कन्वीनियंस मोड। फर्स्ट इज़ टू गो along in own car, second is to go by city bus and third one is to go in sharing car among friends। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप अकेले कार लेके चले जाओ, दूसरा ऑप्शन है आप सिटी बस में जाओ, और तीसरा ऑप्शन है कि आप कार शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। सो सिंपल है कि इफ़ यू चूज़ द फर्स्ट कन्वीनियंस मोड देन यू विल डेफिनेटली रीच द एग्ज़ाम सेंटर इन टाइम, बट इट विल बी डेफिनेटली कॉस्टली। अगर आप कार लेके चले जाओगे तो आप डेफिनेटली टाइम से पहुंच जाओगे एग्ज़ाम सेंटर पे, लेकिन वो कॉस्टली ऑप्शन है। और इफ़ यू चूज़ द सेकंड कन्वीनियंस मोड इट विल बी लिस्ट कॉस्टली बट इट माइट टेक मोर टाइम इन ट्रैवलिंग। अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हो तो वो कॉस्ट में तो कम ही होगा, लेकिन उससे क्या होगा, वो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा। सो यू माइट गेट लेट एट एग्ज़ाम सेंटर। इसकी वजह से आप एग्ज़ाम सेंटर में लेट पहुंच सकते हो। इफ़ यू चूज़ टू ट्रैवल बाय शेयरिंग अमंग फ्रेंड्स इट विल लेट यू रीच विद इन टाइम। और उसकी जगह पे अगर आप कार शेयर करके जाते हो तो आप टाइम पे पहुंच भी जाओगे, और एज वेल एज इट विल बी बोथ इकोनॉमिकल कंपेयर टू फर्स्ट ऑप्शन। और जो फर्स्ट ऑप्शन था उसके कंपैरिजन में इकोनॉमिकल भी होगा अगर आपके फ्रेंड्स पैसे दे तो। Although destinations was reached by using any convenience mode, the best option is to select the third alternative which is economical and object oriented। यानी कि इसके बेस्ड हम क्या कह सकते हैं कि जो भी थर्ड अल्टरनेट है वो इकोनॉमिकल है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। दूसरे पैरामीटर्स जैसे कि अभी मैंने बताया कि फ्रेंड्स पैसे दे या नहीं दे, ये सारे कंस्ट्रेंट हमको नहीं कंसीडर करने, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो दे देंगे, ठीक है। या फिर आप फर्स्ट ऑप्शन में बोलोगे कि ये एग्ज़ाम सेंटर में टाइम से पहुंचा देगा, अगर कुछ पंचर हो गया या बीच में कुछ गाड़ी ख़राब हो गई तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो नहीं होगा, तो हम पहुंच सकते हैं टाइम से। सो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर क्या है, और अल्टरनेटिव्स यहाँ पर 3 अल्टरनेटिव्स थे, उनमें से हमने ऑप्टिमल चूज़ किया। तो ऐसा ही सेम हम OR के अंदर करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर कंस्ट्रेंट्स हमारी लिमिटेशंस क्या है, और थर्ड अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या है। ये हो गया। So OR use various scientific methods to solve various management tasks and helps in taking decision making, ठीक है। So OR help करता है in decision making। Next is scope of operation research। The OR was originated during the World War II, and after World War II OR is being adopted by many industries and organization in order to find out optimum solution। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है और ऑर्गेनाइजेशन है जो OR को यूज़ करती है फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन। Nowadays the scope of OR is found in almost every business area। Following are the areas which find the application of OR in different functional area। जैसे कि सबसे पहला है तो इंडस्ट्री में कहाँ पर यूज़ होगा, तो जैसे कि रिसोर्सेज को अलोकेट करना है, प्रोडक्ट मिक्स का डिसीजन लेना हो, फिर ब्लेंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल का ब्लेंडिंग, फिर इन्वेंटरी कंट्रोल,
लोडिंग प्रॉब्लम्स, असाइनमेंट प्रॉब्लम, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, सिमुलेशन ऑफ रियल सिचुएशन। ये सारी चीज़ों में हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फाइंड करना होगा, फिर कंस्ट्रेंट्स क्या है वो डिफाइन करनी होगी, और अल्टरनेट सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो दैट इज़ द ऑपरेशन रिसर्च। जैसे कि सिमुलेशन ऑफ रियल सिचुएशन, तो उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर कंस्ट्रेंट क्या है, और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है। ये सारे प्रॉब्लम्स में ऑपरेशन रिसर्च यूज़ होगा। सेम वे इन पब्लिक यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और क्यूइंग प्रॉब्लम। फिर प्लानिंग के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग, सीक्वेंसिंग, मटेरियल कंट्रोल, यहाँ पर भी OR इन्वॉल्व होगा। मैनेजमेंट में कहाँ पर यूज़ होगा, तो जैसे कि फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, एडवर्टाइजिंग, मीडिया सिलेक्शन, एडवर्टाइजिंग के लिए मीडिया सिलेक्शन कैसे करें, ब्रेक इवन एंड एनालिसिस, दैट इज़ इन्वॉल्व्स आल्सो OR। फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन एनालिसिस, सेल्स फोर्स अलोकेशन, सेल्स फोर्स का अलोकेशन कैसे करें, दैट इन्वॉल्व्स ऑपरेशन रिसर्च। इन एग्रीकल्चर अभी क्रॉप सिलेक्शन क्राइटेरिया और एरिया अलोकेशन क्राइटेरिया, कि क्रॉप सिलेक्शन कैसे किया जाए, फिर एरिया का अलोकेशन कैसे किया जाए क्रॉप्स के लिए, ठीक है। सो ये हो गया स्कोप ऑफ OR। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट ओरिजिनेटेड डिफेंस, बिकॉज ऑपरेशन रिसर्च ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर सिचुएशन। सो वेपन अलोकेशन, इंटेलिजेंस एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज एंड ट्रेनिंग पर्पजेस, दिस इन्वॉल्व्स ऑपरेशंस रिसर्च। सो ये सारे स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च है। लास्ट our topic is limitations of operation research. Although OR has wide scope of application in various areas, following are some of limitations of OR. OR की कुछ limitations है। सबसे पहली है lack of qualitative factors, qualitative factors की कमी, यानी कि OR में mathematical model है, it ignores the quality और emotional factors. These are always important aspect while analyzing any problem. जो OR है वो क्वालिटेटिव और इमोशनल, वो सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्यूशन ही हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको ओरिएंटेड ही सॉल्यूशन देगा, वो इमोशंस को फैक्टर में कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। जो भी क्वालिटेटिव फैक्टर है वो इसमें मिसिंग होगी। सेकेंड लिमिटेशन इज लिमिटेड फैक्टर कंसिडरेशन। यहाँ पर जो भी हमारी लिमिटेशन है कि जो हम फैक्टर कंसिडर करते हैं वो लिमिटेड है। Although OR tries to involve number of factors in consideration while finding the optimum solution, in present day problem involve numerous factors, so it all considered in quantities and relationship among relationship are established, then huge calculations are required. अभी OR के अंदर जो वो ट्राई तो करेगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके अंदर कंसीडर किए जाए जब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है, जो भी, बट प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होगा कि जो भी फैक्टर्स है वो बहुत सारे होते हैं, और जितने ज़्यादा आप फैक्टर सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस बनेंगे, और उनका सॉल्व करना उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस आएंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। फिर थर्ड है स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रॉब्लम है उसमें OR कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन सर्टेन स्पेसिफिक कैटेगरी विच आर इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व अदर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रॉब्लम। सपोज कोई प्रॉब्लम है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वो OR से सॉल्व नहीं होगा। एंड द फोर्थ वन इज़ रेजिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। अभी यहाँ पर क्या होगा कि जो भी चेंजेस है वो पार्ट ऑफ, जो भी चेंजेस हमने सजेस्ट किए हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ OR। एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट इन फेवर ऑफ चेंजेस ड्यू टू
ओल्ड थिंकिंग, उनकी ओल्ड थिंकिंग की वजह से जो भी डेली रूटीन है उसमें वो चेंज करना नहीं चाहेंगे, उसकी वजह से वो क्या होगा, रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे, वो ट्राई करेंगे कि वो आर अप्लाई ना हो। सो ये सारी थी limitations of operation research. So if I conclude the today's lecture, we discussed about the characteristics, features of operation research, then the various phases, scope and limitations of operation research. So this is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.